हाँ जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਸਾਇੰਸ ਈਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 8th ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੈੱਲ, ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਇਰਸ, ਵੀਰੋਇਡ, ਵੀਰੋਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਸਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਸਟ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਸਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਐਕਟਿਵ। ਐਕਟਿਵ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ। ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਤੇ ਸੈੱਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨੈਲੀ। ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨੈਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨੈਲੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨੈਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਮਤਲਬ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ। ठीक है।
ਡੈਂਡਰਾइट्स। तो पहला तो मैं जिहड़ा है एक्सप्लेन कर ही चुकी हाँ कि कोई भी सैल यह की अपना नर्व सैल है अपना ह्यूमन बॉडी का, कोई भी सैल विदाउट न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेंटर दे विच ये वाला की है इसका न्यूक्लियस, सेंटर दे विच, ठीक है। हुण न्यूक्लियस एंड ये जिहड़ी इसकी मैमब्रेन होगी उस दे विचकार आपां कहा सी एक फ्लूइड हुंदा जिसनूं आपां की बोलदे हैं साइटोप्लाज्म। यह की हो गया फिर साइटोप्लाज्म, ठीक है। उस बाद जिहड़ा ये वाला पार्ट आ गया, ये देख रहे हो तुसीं, इट इज़ कॉल्ड एक्सॉन, एक्सॉन बोलते हैं इसनूं। उस बाद ये एंड हो जाता है, ये वाला जिहड़ा लास्ट वाला पार्ट है इसनूं कहा जाता है नर्व एंडिंग। क्लीयर है। हुण इसके फंक्शनस दे विच की है, इसका जो फंक्शन है वो ये है कि यह मैसेज नूं रिसीव करता है तो अगे ट्रांसफर करता है, ठीक है। कोई भी बॉडी दे विच अपने मूवमेंट हुंदी है ਉਹ ਨਰਵਸ सिस्टम के अंडर ਹੁੰਦੀ है तो मैसेज हैगा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ है। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਰਵ ਸੈਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵ ਸੈਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। नैक्सट पॉइंट है इसका इट कंट्रोल एंड कोआर्डीनेट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये तुहानूं मैं दस ही दिता कि यह कंट्रोल करेगा अपनी बॉडी नूं कि तुसीं सोचदे हो, सोच के जिहड़ा भी काम करदे हो उस दे विचकार मतलब सोचण दे ते करन दे विचाले जो भी कोआर्डीनेशन हुंदी है उस नूं बनाए रखण दे विच नर्व सैल बहुत इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल है इन्हां दा। सैकेंड क्वेश्चन दे विच देखो सैल दी आपां स्ट्रक्चर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसती कि इस की कंपोनेंट्स होंगे है, तो हुण तुहानूं जिहड़े ये वालियां टर्म्स ने वो ईजीली समझ आ जाणगीआं। साइटोप्लाज्म की हुंदा है, साइटोप्लाज्म एक जैली लाइक फ्लूइड हुंदा है जिहड़ा कि कित्थे प्रेजेंट हुंदा है, न्यूक्लियस एंड सैल मैमब्रेन दे विचकार, इन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड सैल मैमब्रेन, ठीक है। तो इस दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया सीगा कि जिन्हों आपां कहने सैल ऑर्गेनली वो प्रेजेंट होंदियां ने, उससे तुसीं नाम दे देने आ, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस होगी, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, ये सारे इस दे विच साइटोप्लाज्म दे विच प्रेजेंट हुंदे ने। ते इस तो बिना इस दे विच वाटर प्रेजेंट हुंदा है, शुगर प्रेजेंट हुंदी है, मिनरल्स प्रेजेंट हुंदे हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे इसका की है कंपोनेंट्स ने। नैक्सट जिहड़ी टर्म है न्यूक्लियस, देखो राजे न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर दे विच प्रेजेंट है। यह एनीमल सैल दे विच ऑलमोस्ट सेंट्रल इहदी पोजीशन हुंदी है, बट प्लांट सैल दे विच थोड़ा जिहा साइड वल हुंदा है, ठीक है। उसका रीजन भी दसांगे कि क्यों साइड वल हुंदे, इसका डिफरेंस आपां करांगे एनीमल एंड प्लांट सैल का डिफरेंस। हुण न्यूक्लियस की है, यह राउंड बॉडी हुंदी है, नीयरली राउंड कह सकते हैं आपां, मतलब कि यूकैरियोटिक सैल्स दे विच प्रेजेंट है एज वैल एज प्रोकैरियोटिक, दोनों टाइप के सैल दे विच जिहड़ा न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट हुंदा है। इसनूं कंट्रोलर ऑफ द सैल भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी सैल नूं कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है रजे। जिवें ह्यूमन है, ह्यूमन दे विच कंट्रोल मतलब कि थिंकिंग दी दा जिहड़ा वर्क है वो कौन करता है, ब्रेन बोलते ना आपां कि थिंकिंग दा वर्क ब्रेन करदा हैगा। सेम वे दे नाल जिहड़ी कंट्रोलिंग है सैल दी वो कौन करेगा, न्यूक्लियस। तां इस दे विच एक ये है कि इस दे कंपोनेंट्स दसने आपां। हुण देखो सेंटर दे विच प्रेजेंट है न्यूक्लियस, अगों इस दे विच भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हुंदे आ, किहड़े किहड़े जे इसनूं आपां साइड ते करके लिखीए, इसनूं साइड ते जे बनाईए आपां ड्रॉ करिए, न्यूक्लियस है ये वाला, ठीक है। न्यूक्लियस दा जिहड़ा साइटोप्लाज्म है, जिवें हुण न्यूक्लियस ते सैल मैमब्रेन दे विचाले जिहड़ा फ्लूइड प्रेजेंट सी उहनूं आपां साइटोप्लाज्म कहा, ते ओह वाला फ्लूइड जिहड़ा कि न्यूक्लियस दे विच प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दे विच प्रेजेंट है जिहड़ा फ्लूइड उसनूं आपां बोलदे आ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस दा प्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। उस तो बाद इसकी एक जिवें सैल की कवरिंग हुंदी है उवें ही न्यूक्लियस की की है मैमब्रेन हुंदी है, बट यह जिहड़ी न्यूक्लियस की मैमब्रेन सिर्फ प्रेजेंट किहदे विच होएगी, यह यूकैरियोटिक सैल दे विच प्रेजेंट हुंदी है। प्रोकैरियोटिक सैल दे विच न्यूक्लियस की जिहड़ी मैमब्रेन है वो की हुंदी है, एबसेंट हुंदी है। न्यूक्लियस की मैमब्रेन नूं की बोलदे हैं, न्यूक्लियर मैमब्रेन। क्लीयर है। उस तो बाद एक तो हो गया इस दे विच जो आपां कहा कि फ्लूइड प्रेजेंट है उसनूं आपां न्यूक्लियोप्लाज्म बोलता। एक इस दे विच न्यूक्लियस दे विच भी एक राउंड बॉडी प्रेजेंट हुंदी है, इस दे विच न्यूक्लियस दे विच भी एक
ਰਾਉਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ, NUCLEUS, ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ। ठीक है, ये प्रेजेंट होंगी है। तो जो फोर्थ है एक होर कंपोनेंट रह गया, वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की है थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर्स होंदियां ने जिहड़ियां प्रेजेंट होंदियां ने न्यूक्लियस दे विच ही। ठीक है, थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर्स जिहड़ियां कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नूं ट्रांसफर करनगियां एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन दे विच। तो नैक्सट अपना क्वेश्चन है, ये तुहानूं क्लीयर हो ही गया होना कि सैल दे किहड़े पार्ट दे विच ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंदियां ने, वो की है साइटोप्लाज्म। हुण है प्लांट सैल एंड एनीमल सैल का डिफरेंस दसना है। ठीक है राजे, देखो सब तो पहला एक तो साइज़ का दोवां दे विच डिफरेंस हुंदा है। जिहड़ा प्लांट सैल हुंदा हैगा वो एनीमल सैल दे कंपेयर दे विच की हुंदा हैगा, छोटा हुंदा है। एनीमल सैल इज स्मॉलर दैन प्लांट सैल। सैकेंड इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट तुसीं ऐड कर लियो राजे, तुहाडी नोटबुक्स ते ये जिहड़ा है ऐड नहीं है पॉइंट, ये तुसीं लिख सकदे हो। ठीक है, तो नैक्सट की है, देखो ध्यान नाल एनीमल सैल है, एनीमल सैल दे अराउंड सिर्फ तुसीं सिंगल जिहड़ी ये वाली लाइन है वो देख रहे हो। जिहड़ा प्लांट सैल है इस दे विच की है डबल। ठीक है, इधर सिंगल है। तो हुण जिहड़ा प्लांट सैल है इस दे विच डबल की है, एक तां सैल दी मैम्ब्रेन होगी जिहड़ी अंदर वाली है, बट आउटर वाली है जिहड़ी वो की है सैल वॉल। प्लांट सैल दे विच एक मतलब कि सैल वॉल है जिहड़ी वो प्रेजेंट हुंदी है। एनीमल सैल दे विच जिहड़ी सैल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं हुंदी, सिर्फ सैल मैम्ब्रेन ही प्रेजेंट हुंदी है। सैल मैम्ब्रेन दोवां दे विच होएगी, बट जिहड़ी सैल वॉल है वो कल्ली प्लांट सैल दे विच प्रेजेंट हुंदी है। क्लीयर है राजे? ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गए हैं। उस बाद साइटोप्लाज्म की गल करिए। जिहड़ा साइटोप्लाज्म है प्लांट सैल दा वो की हुंदा है, थिन हुंदा है, ते एनीमल सैल दा जिहड़ा साइटोप्लाज्म है वो की हुंदा है, थिक हुंदा है। उस तो बाद इस सैल दे विच आपां देख रहे हैं, देखो आह वाली जिहड़ा वाइट तुहानूं एक स्पेस दिख रही है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, इस एम्प्टी स्पेस नूं की बोलते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल, ये वैक्यूल प्लांट सैल दी है। इस साइड देखो एनीमल सैल दे विच की है, ये भी की है वैक्यूल है, बट दोवां दे विच डिफरेंस तुसीं देख सकदे हो ना। प्लांट सैल दे विच जिहड़ियां वैक्यूल्स हुंदियां ने वो की हुंदी है, वड्डी हुंदी है। इन प्लांट सेल वैक्यूल इज लार्जर इन साइज। इन एनीमल सेल दीज आर स्मॉलर इन साइज। बहुत छोटियां छोटियां जिहड़ियां वैक्यूल्स ने वो प्रेजेंट ने एनीमल सेल दे विच। ये डिफरेंस हो गया। उस तो बाद जिहड़े सेंट्रोसोम ने वो प्लांट सैल दे विच की है, एबसेंट हुंदे ने, ते एनीमल सैल दे विच की हुंदे ने, प्रेजेंट हुंदे ने। ठीक है राजे? इस तो बाद देखो तुसीं ये भी नोट कर रहे हो कि जिहड़ा न्यूक्लियस है, देखो एनीमल सैल दा ये वाला न्यूक्लियस है, प्लांट सैल दा ये वाला न्यूक्लियस है। जिहड़ा न्यूक्लियस है वो सेंटर दे विच प्रेजेंट है, नियरली सेंटर दे विच एनीमल सैल दे विच, बट प्लांट सैल दे विच ये की हैगा साइड वाल नूं है, जिहनूं आपां की बोलदे हैं पेरीफेरल। थोड़ा जिहा पेरीफेरी है, मतलब साइड नूं। नैक्सट है जिहड़ा रिजर्व फूड है प्लांट सैल दे विच, ये तुसीं 7th क्लास दे विच भी तुहानूं जिहड़ा है चैप्टर दे विच सी फिलअप सीगियां कि जिहड़ा फूड है वो प्लांट्स दे विच किहड़ी फॉर्म दे विच स्टोर हुंदा है, पता है ना तुहानूं? वो की हुंदी है, स्टार्च। जिहड़ा प्लांट सैल है उस दे विच जिहड़ा फूड है वो स्टोर होएगा एज स्टार्च, ते एनीमल सैल दे विच जिहड़ा फूड है वो किस फॉर्म दे विच स्टोर हुंदा है, एज ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये तुहाडे 6 पॉइंट्स हो गए। तो ये तुसीं आई थिंक तुहानूं कि क्लीयर हो गया होएगा।